चॉकलेट वही है, सिर्फ रैपर चेंज हुआ है। पहले भी वही था, ये अभी वही है। बीजेपी एक हार्डकोर हिंदुत्व का रास्ता अपनाती है और कांग्रेस सॉफ्टकोर हिंदुत्व का रास्ता अपनाती है। तो इसमें सिर्फ रैपर चेंज हुआ। पहले साफरानी रैपर था, अभी ट्राई कलर रैपर डालकर बेवकूफ बनाने की एक ओपन साजिश है, बस इतना ही। 76 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस अगर उठाकर देखेंगे, तारीख गवाह है कांग्रेस के पीरियड में क्या क्या माइनॉरिटीज को, बिलखुसूस मुसलमानों को क्या क्या तकलीफें झेलने पड़ी है, चाहे वो कम्युनल क्लैशेस के जरिए से हो या तो बेकसूरों के ऊपर यूएपीए जैसे केसेस डालने के ऊपर हो। यूएपीए की अगरचे आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे, चिदम्बरम के पीरियड में यूएपीए को अमेंडमेंट किया गया था, जबकि कांग्रेस के दौर में ही यूएपीए को लाया गया था। बीजेपी हुकूमत में टारगेटेडली कभी हिजाब के नाम पर, कभी हलाल के नाम पर, कभी अजान के नाम पर मुस्लिम नौजवानों को, मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर इनके ऊपर झूठे मूठे इल्जाम लगाकर इनको जेलों को भेज रही थी। तो इससे कुछ रिलीफ मिल जाएगा। आइंदा आने के बाद इन्होंने वादे किए थे ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन, यही कांग्रेस के लीडर्स वादे किए थे, हम जब हुकूमत में आएंगे तो बीजेपी की हुकूमत में जितने भी माइनॉरिटी के ऊपर जो टारगेटेडली साजिश के साथ इनके ऊपर यूएपीए जैसे कानून लगाकर जेलों में बंद किए हैं, इसको हम, इनके जो भी इनोसेंट्स हैं इनको हम रिहाई करेंगे। और अगर कोई इसमें इंसिडेंट में शामिल भी है, इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए से इनकी केस का भरपूर सुनाई करेंगे। लेकिन 4 महीने हो गया कांग्रेस हुकूमत में आकर, जो हुकूमत में आने से पहले आप जो वादे करे थे, कहां गए आपके वादे? ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಜೈ ಭೀಮ್. DJಹಳ್ಳಿ KJಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗೇನು ಒಂದು ತನಿಖಾ ವರದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಗೆ ಸೇರಿದೆ, ಅದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಹಿಂದೆ BJP ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪಕ್ಷದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು BJP ಸರ್ಕಾರದ ತನಿಖಾ ವರದಿಯ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಂಘ ಪರಿವಾರದವರಿಂದ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ತನಿಖಾ ವರದಿ ಅಂತ ನೀವು ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅಮಾಯಕರನ್ನ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅಮಾಯಕರನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ದೀರಿ, ಕೊಲೆಗಡಕರು ನೀವು. ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹಿಸಿದಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಏನು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವರು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದಿಂದ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ, ಆ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಕಂಡಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನು 3 ಜನ ಅಮಾಯಕರು ಪೊಲೀಸ್ನವರ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಲಿಯಾದರು, ಅದು ಸರಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಗಲಭೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ವರದಿಯನ್ನು ಇವರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ನಯವಂಚಕವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಪಾದನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಇವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವತ್ತಿನ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕರನ್ನ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದರು. ಕಳೆದ 1 ತಿಂಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡಿತೀವಿ, ಅಮಾಯಕರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಈಗ RSSನವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ತನಿಖಾ ವರದಿ ಅಂತ ಇವರೇ ಹೇಳಿ ಈಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇವರಿಗೂ BJPಗೂ ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯ ಏನು SDPನ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ನಯವಂಚಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೊಲೆಗಡಕ BJPಯಿಂದಾಗಲಿ ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮೂಲಕ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಮಾಯಕರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು. ಯಾರ್ಯಾರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಕೇಸು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರದ ಸಮೇತವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಆ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. सर, कांग्रेस का ये टर्न लेना, तो जो रिपोर्ट को पहले मना किया गया था, डिने किया गया था, फिर से वही रिपोर्ट को एक्सेप्ट करना, ये क्या मामला समझ में नहीं आया सर? क्या कांग्रेस डर चुकी है या मुसलमानों के साथ धोखा हो रहा है? सर, अगरचे स्ट्राइट फॉरवर्ड बात करना हो, चॉकलेट वही है, सिर्फ रैपर चेंज हुआ है। पहले भी वही था, ये अब भी वही है। बीजेपी एक हार्डकोर हिंदुत्व का रास्ता अपनाती है और कांग्रेस सॉफ्टकोर हिंदुत्व का रास्ता अपनाती है।
तो इसमें सिर्फ रैपर चेंज हुआ, पहले साफरानी रैपर था, अभी ट्राई कलर रैपर डालकर बेवकूफ़ बनाने की एक ओपन साजिश है, बस इतना ही। 76 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस अगर उठाकर देखेंगे, तारीख गवाह है कांग्रेस के पीरियड में क्या क्या माइनॉरिटीज़ को, बिलखुसूस मुसलमानों को क्या क्या तकलीफ़ें झेलने पड़ी है, चाहे वो कम्युनल क्लैशेस के जरिए से हो या तो बेकसूरों के ऊपर यूएपीए जैसे केसेस डालने के ऊपर हो। यूएपीए की अगरचे आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे, चिदम्बरम के पीरियड में यूएपीए को अमेंडमेंट किया गया था, जबकि कांग्रेस के दौर में ही यूएपीए को लाया गया था। तो आप इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? सिर्फ ये एक बेवकूफ़ बनाने के लिए और एक माइनॉरिटी अपीसमेंट की ये पॉलिटिक्स करने की एक चाल, ये है बस, दूसरा कुछ नहीं है। तो मैं आने वाले दिनों में ये एक मैच्योर्ड लीडर से, मैच्योर्ड वोटर से भी यही अपील करना चाहूँगा, आपके बीच में एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की शक्ल में एक प्लेटफॉर्म जो है उभरता आ रहा है। जब तक इस प्लेटफॉर्म को आप लोग मजबूत नहीं करेंगे, हमारे मुद्दों पर, हमारे मसाइल पर बात करने वाला कोई नहीं होगा। एक बहुत बड़ी कहावत है, जो कौम अपने मुद्दों को नहीं उठाती, वो कौम अपने नौजवानों की लाशों को उठाती है, बोलकर एक बहुत बड़े शख्स ने कहा है। आज वही हालत हिंदुस्तान में हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है। तभी कैबिनेट अप्रूव किया था ये मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी, अभी गेजेट नोटिफिकेशन हुआ है, क्या ऑब्जेक्शन है एसडीपीआई का इसके ऊपर? देखिए, जब बीजेपी हुकूमत थी तब एक केजे हल्ली डीजे हल्ली इंसिडेंट को एक प्री प्लान्डली एक हमारे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर्स को टारगेट करते हुए हमारी पार्टी के ऊपर इन्होंने एक इल्ज़ाम लगाने की साजिश रचाई थी। तब यही कांग्रेस आज जो हुकूमत में है, इनका भी यही मानना था, एक पॉलिटिकल साजिश रचाकर इसको टारगेट किया गया है। ये एक्चुअल ये इंसिडेंट नहीं है, इसको हम मैजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी को हम नहीं मानेंगे, हम एक जुडिशियल इंक्वायरी को डिमांड करेंगे बोल के कांग्रेस भी बोली थी और एसडीपी का भी स्ट्रांग हमारा दावा था। लेकिन आज वही कांग्रेस हुकूमत में आती है, ऑल ऑफ ए सडन जो बीजेपी के दौर में जो इन्होंने आपेश किए थे वही मैजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी को ये एक्सेप्ट करती है, बोले तो इसको क्या बोलना है? ये इनकी दोहरापन है। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इनके ये दोहरेपन को आज कंडेम करती है और इमीडिएटली अगर यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर और यहाँ के ज़मीनी कानून के ऊपर थोड़ा बराबर भी आपको भरोसा है तो आपकी मौजूदगी में एक हाईकोर्ट के सिटिंग जज की मौजूदगी में एक मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल इंक्वायरी कराओ, इसकी सच्चाई सामने आती है। तो इसको किसी भी हालत में हम मानेंगे नहीं, आप भी इसको एक्सेप्ट नहीं करना, इसलिए आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान थोड़ा एक्सप्लेनेशन। देखिए, कर्नाटक में ये आज कांग्रेस हुकूमत जो हुकूमत में आई है 90% माइनॉरिटी SC ST OBC के वोट लेकर आई है और माइनॉरिटी खास करके कांग्रेस को इसलिए तायद किए लास्ट इलेक्शन में, इनके 2000 की गारंटी को देखकर वो इनके तायद नहीं किए, बल्कि जो बीजेपी हुकूमत में टारगेटेडली कभी हिजाब के नाम पर, कभी हलाल के नाम पर, कभी अजान के नाम पर मुस्लिम नौजवानों को, मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर कर इनके ऊपर छोटे मोटे इल्जाम लगाकर इनको जेलों को भेज रही थी। तो इससे कुछ रिलीफ मिल जाएगा। आइंदा आने के बाद इन्होंने वादे किए थे ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन, यही कांग्रेस के लीडर्स वादे किए थे, हम जब हुकूमत में आएंगे तो बीजेपी की हुकूमत में जितने भी माइनॉरिटी के ऊपर जो टारगेटेडली साजिश के साथ इनके ऊपर यूएपीए जैसे कानून लगाकर जेलों में बंद किए हैं, इसको हम, इनके जो भी इनोसेंट्स है इनको हम रिहाई करेंगे और अगर कोई इसमें इंसिडेंट में शामिल भी है इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए से इनकी केस का भरपूर सुनवाई करेंगे। लेकिन 4 महीने हो गया कांग्रेस हुकूमत में आकर, जो हुकूमत पे आने से पहले आप जो वादे करे थे, कहां गए आपके वादे? आज ये होम मिनिस्टर स्टेटमेंट देते हैं कि हमारे कैबिनेट के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। डीके शिव कुमार बोलते हैं मैं लेटर लिखा हूं। चीफ मिनिस्टर बोलते हैं ये हमारे सामने कोई प्रस्ताव नहीं आया, और एक मिनिस्टर बोलते हैं नहीं हमें कैबिनेट में इसका चर्चा हुआ है। तो आपके चारों के स्टेटमेंट में तालमेल नहीं है। तो आपको बीजेपी के आईटी सेल को डरकर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं क्या? आप अगर बीजेपी के आईटी सेल को डरने वाले हैं तो कैसे रूल करेंगे कर्नाटक में? क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी कभी भी कम्युनल वायलेंस करने के लिए कोशिश करते रहेगी और माइनॉरिटी SC ST OBC के ऊपर टारगेट करते रहेगी। अगर इनको डटकर मुकाबला करना है तो मैं एक सलाह देता हूं आज के होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को, आप अलग ऐलान आके मीडिया में ऐलान करो, हाँ माइनॉरिटी के वोट लेने पर हमने वादा किया था उनको कि इनोसेंस की केस हम वापस लेते हैं, इसलिए हम नेक्स्ट कैबिनेट में एजेंडा रखते हैं। बोलो अलग ऐलान, क्यों डर रहे हैं इसके लिए? आपको डर होती है तो आपके साथ SDP रुकेगी। अगर ये स्टेटमेंट देने आपको डर होता है तो कर्नाटक
के पूरे माइनॉरिटीज आपके साथ में रुकेंगे। आप डरकर बीजेपी के 80 सेल्स को डरकर ऐसे स्टेटमेंट मत दियो। आपके बहुत बड़ा एहसान है मुसलमान कम्युनिटी के ऊपर। आपको मुस्लिम कम्युनिटी, खुसूसन माइनॉरिटी और मुस्लिम कम्युनिटी वोट इसलिए दी थी आपके गारंटी को देखकर नहीं, जो माइनॉरिटी के ऊपर जो हुबली में हमारे 130 नौजवानों को यूएपीए लगाया गया, यूएपीए टेररिस्ट एक्ट लगाया गया। केजे हल्ली में मुजम्मिल पाशा यहाँ चश्मदीद गवाह हैं, इन्हों पीस मेंटेन करने के लिए अपील करने गए थे, इनके ऊपर टारगेटेडली यूएपीए लगाया गया था। आज डिफॉल्ट बेल्ट में बाहर हैं। आज भी हमारे बेंगलुरु के शरीफ, बेंगलुरु के प्रेसिडेंट, इन्हों पुलिस स्टेशन के नजदीक तक नहीं गए, इनको साजिश के तहत फंसाया गया। ऐसे जो इनोसेंट्स हैं इनको रिहाई करो, तब आपको माइनॉरिटी कमेटी कुछ मानेगी। तो आप ये झूठे वादे आप जो दिए हैं, 4 महीने हो गए, अभी आपका हनीमून पीरियड भी खत्म होने वाला है। अगर आप इमीडिएटली इसके ऊपर कामजन नहीं होंगे तो पूरे कर्नाटक लेवल पर हम ये मुद्दे को उठाएंगे। माइनॉरिटी को आप और भी पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान वोट मांगने के जाना है इनके दहलीजों में, ये याद रखिए। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का मुतालबा ये है, जितने भी इनोसेंट्स है जिनके ऊपर यूएपीए जैसा काला कानून लगाकर इनको टारगेट कर जेलों में फंसाया गया, इनको रिहाई करो, ये हमारा मुतालबा है।